understand? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. So, like, we didn't had enough attendance on Saturday, so we didn't continue with the class. So today we will be having class 3 only. So, Vishaka, can I start or should I wait for 1 2 minutes more if anyone else is joining? I guess you can start now. Okay, okay. Yes, sir. Okay. Yeah, my screen is visible, correct? So, yes. So, today's topic is participants of financial markets. कि financial market में कौन कौन participate करता है? And we'll be discussing two topics broadly in this, like different participants and role and impact of each participant. Also, you will be getting your first task for the week, like for this internship, and if you get time, please do try to complete it. And there are small tasks which we have designed for you, which will help you in understanding the financial markets better. So, let's start with participants of financial markets. So, would you like to like answer कि कौन कौन हो सकते हैं, who all can be participants of financial markets? Any guesses or from your understanding कि okay ये लोग होते हैं financial market में? No. So Yeah, shareholders. yeah, shareholders, correct. Yeah, any more guesses? So you're from commerce background, Tanisha, or PCM? I'm from commerce background, sir. Commerce background itself. Okay, okay. So I'll start with participants. Firstly, we have individual investors. Then comes institutional investors. We have brokers. We have regulators. We have depositories, and then we have exchanges. So we'll be discussing all those participants in detail going forward. So let's start with individual investors. So what do you understand by individual investors? Like a common person is investing into stocks. Yep, individual investors are person like you and me, jo, which are not a corporate account or a company account, like not a firm, individual investors like us. So let's read the bookish definition first. So individual investors are who which buy and sell securities for their personal account rather than for another company or organization. So rather than for another company or organization means like there could be a mutual fund फॉर सपोज एसबीआई म्यूचुअल फंड तो अगर वो बाय करेगा तो दे विल फॉल इन इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी नॉट इंडिविजुअल एंड हम हमारे लिए हमारे अकाउंट में परचेस कर रहे हैं सो इट इज नोन एज पर्सनल अकाउंट कि हमारा खुद का अकाउंट है सो वी आर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स सो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स आर कैटेगराइज्ड इन two parts. One is retail investor, and then we have HNIs. HNIs are high net worth individuals. So retail investors are those investors जिनका capital छोटा रहता है, which is usually less than 2 to 5 lakhs. And then we have high net worth individuals जिनका net worth above 5 crores होता है. तो 5 crores. So what do we mean by net worth? Net worth वो होता है जैसे आपकी जितने भी total assets है, like you have 2 houses, 5 cars, and you have some property and some investment in mutual funds, some investment in stock market, gold, jewelry. अगर वो सब मिला के 5 crore के ऊपर होता है तो you will be considered as high net worth individual कि आपके पास बहुत पैसा है and you categorize in that thing. And then we have other category which is retail investor जो कि common man रहता है usually. So any doubts in individual investors or retail or HNI? Not sure. Clear? Okay. So आपने ये टर्म सुना होगा थोड़ा कॉमन कि वी हैव इन्वेस्टर एंड देन वी हैव ट्रेडर्स. सो आई पॉइंट आउट सम डिफरेंसेस कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन्वेस्टर और ट्रेडर में. Hmm. So investing is a long-term approach where the goal is to build wealth gradually over the long term using investing schemes such as mutual funds, buying and selling of a portfolio of a stock, bonds, a basket of stocks, and much more. Whereas trading is a short-term and a volatile process that involves frequent transactions based on trends in the market. तो एक जो इन्वेस्टर होता है वो उसकी एक लॉन्ग टर्म अप्रोच रहती है जो मार्केट में वेल्थ जनरेट करने के लिए आया है.
वो 1 या 2 दिन के लिए कुछ भी स्टॉक नहीं खरीदेगा, वो खरीदेगा सालों साल के लिए। लाइक मिनिमम क्राइटेरिया उसका रहता है कि 1 साल के लिए दे विल परचेज समथिंग, and they will diversify their portfolio in various things, like they will purchase mutual funds, they will buy bonds, they will buy baskets of stock। मतलब basket of stock ऐसा हुआ कि if they are thinking कि इंडिया में टूरिज्म बहुत अच्छा चलने वाला है next 5 years, तो they will purchase all the tourism stocks। तो जितने भी टूरिज्म स्टॉक्स हैं उसको एक बास्केट में बोलेंगे कि दैट इज अ बास्केट ऑफ स्टॉक्स। सो दैट्स इन्वेस्टिंग। एंड ट्रेडिंग जो होती है दैट इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, एंड एक पर्सन उसको अपनी डेली नीड्स के लिए करता है कि आज उसको प्रॉफिट होगा तो आज ही वो अपने घर लेके जाएगा एंड उससे अपना घर चलाएगा करके। सो एंड एंड ऑल्सो ट्रेडिंग इज अ वॉलेटाइल प्रोसेस। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको डेली प्रॉफिट ही होगा, इट कुड बी इधर वे, आपको लॉस भी हो सकता है एंड देन यू कैन बी इन प्रॉफिट एज वेल। सो I'll explain the differences in details. So let's start with first point, investing. It is a long term focus, usually more than a year. Then we have trading, that is short term focus, could be a day, week or month। ट्रेडर एक छोटी टाइम के लिए पोजीशन क्रिएट करता है, हो सकता है वो अपनी पोजीशन 1 डे में खत्म कर दे, 1 वीक में या 1 मंथ में। देन इन इन्वेस्टिंग, रिस्क लेस रिस्क इज इन्वॉल्व, वेयर इज इन ट्रेडिंग मोर रिस्क इज इन्वॉल्व। ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल रहता है, मार्केट फ्लक्चुएट होता है डेली 1-1.5% तक, तो यू कुड लूज अ बिग अमाउंट अगर आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में नहीं है तो। वेयर इज इन्वेस्टिंग में वो फ्लक्चुएशंस का इतना फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मार्केट इवेंचुअली ऊपर ही जाता है। देयर इज अ सेइंग कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, उसको इवेंचुअली ऊपर ही जाना पड़ता है। तो रिस्क लेस रहती है इन्वेस्टिंग में अगर आपका टाइम होराइजन 2-3 ईयर्स से ज्यादा रहता है तो। इन्वेस्टिंग में ग्रोथ माइंडसेट रहता है, वेर इज ट्रेडिंग में प्रॉफिट माइंडसेट रहता है। सो जो इन्वेस्टर रहता है ना, उसको ग्रोथ चाहिए रहती है कि अगर उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो ही इज प्लानिंग कि वो 1 लाख रुपए 3-4 साल बाद 2 लाख 2.5 लाख रुपए हो जाए। वेयर एज ट्रेडर का जो रहता है वो प्रॉफिट माइंडसेट रहता है, ही विल टॉक इन परसेंटेज की अगर आज मैंने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करें तो आई एम लुकिंग टू अर्न 1% और 2% टूडे, विच इज 2000 रुपीज। देन मुझे 2000 का प्रॉफिट होगा, मैं उसको विड्रॉ कर लूंगा एंड उससे मेरा डेली एक्सपेंसेस या जो भी है वो करूंगा। फिर इन्वेस्टर जो है वो बेनिफिट करता है स्टेबिलिटी से, वेर इज ट्रेडर को वॉलेटिलिटी से बेनिफिट होता है। जितना मार्केट स्टेबल रहेगा इन्वेस्टर को उतना ज्यादा रिटर्न मिलते जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट सीधे अपसाइड जाते आ रहा है तो दे विल कीप ग्रोइंग। वेर एज जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट जितने अप्स एंड डाउन होंगे उसमें ट्रेडर को फायदा होगा, क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारे बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, तो इट विल गिव देम मोर अपॉर्चुनिटी। और अगर स्टेबल मार्केट रहेगा, ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं रहेगी, फ्लक्चुएशंस नहीं रहेंगे मार्केट में, तो ट्रेडर वोंट बी एबल टू मेक मच मनी। सो इन्वेस्टिंग में फंडामेंटल एनालिसिस को ध्यान रखा जाता है। सो व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस? सो व्हेन यू आर पिकिंग एनीथिंग, एनी कंपनी, एनी स्टॉक और एनीथिंग, इफ यू आर सिलेक्टिंग एन एसेट क्लास टू इन्वेस्ट, तो आप उसके अक्रॉस का पूरा इकोसिस्टम चेक करोगे। अगर मेरे को रिलायंस में इन्वेस्ट करना है तो आई विल चेक इट्स कंप्लीट बैलेंस शीट, मैं उनका फ्यूचर प्रपोजल्स चेक करूंगा कि व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, एंड उनके पूरा वैल्यूएशन चेक करूंगा कि अगर उनका स्टॉक एक्सपेंसिव तो नहीं है, उनके कॉम्पिटिटर्स का स्टॉक कितने रुपीज में मिल रहा है एंड इनका स्टॉक कितने रुपीज का चल रहा है। सो दिस ऑल थिंग्स आर कैटेगराइज्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस। एंड इन ट्रेडिंग यू विल डू मोर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस में आप चार्ट्स ओपन करेंगे, उस पे वेरियस इंडिकेटर्स लगा सकते हैं आप। जब व्हेन यू आर डूइंग ट्रेडिंग यू कैन चेक चार्ट्स ऑफ द स्टॉक कि ओके डेली ये इतना बढ़ता है, इसमें इतना वॉल्यूम हो रहा है, मतलब उसमें इतने लोग बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, क्या उसने अपने लास्ट डे के हाई के ऊपर आज निकला है कि नहीं निकला है। ऐसे बहुत सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं जो बताते हैं कि कोई स्टॉक बुलिश है या बियरिश है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बाइंग एंड होल्डिंग। इन्वेस्टर एक बार कोई चीज खरीदता है तो उसको होल्ड करता है 1-2 साल 3 साल के लिए, बट ट्रेडर वोंट होल्ड इट, इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, वो अपनी पोजीशन बहुत जल्दी चेंज करते हैं। देन इन इन्वेस्टिंग अवर प्राइमरी फोकस इज टू जनरेट वेल्थ, वेयर एज इन ट्रेडिंग वी आर ट्राइंग टू बिल्ड कैपिटल। सो ट्रेडिंग में योर प्राइमरी फोकस इज कि आज मेरा प्रॉफिट 1 लाख हुआ है, कल 1 लाख 5, सॉरी आज मेरा इन्वेस्टमेंट 1 लाख का है, उसमें 5 हजार का प्रॉफिट हो गया है, तो आई विल बुक माई प्रॉफिट। तो अब मेरी कैपिटल हो जाएगी 1,05,000 की एंड मैं कल उससे ट्रेड करूंगा।
वेयर इज इन इन्वेस्टिंग वी आर फोकसिंग ऑन वेल्थ जनरेशन, कि उसको बढ़ता रहने देंगे। 1 लाख अगर इन्वेस्ट करा है तो जब तक वो साइजेबल रिटर्न नहीं देगा, 30%, 40%, इट कुड बी 100%, तब तक मैं सेल नहीं करूंगा। सो दिस आर डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अगर आपको किसी में कुछ भी डाउट है रिगार्डिंग इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, डिफरेंसेस बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड अ ट्रेडर, एंड इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो यू कैन आस्क, और इट्स ऑल क्लियर। Yes, sir. हाँ, डाउट है? इफ इट अगर वी कैन मूव फॉरवर्ड, यू कैन गिव अ थम्स अप, ओके तनिषा, ओके। Let's go to the second topic, which is institutional investors. So अभी हमने पढ़ा इंडिविजुअल इन्वेस्टर, जो कि आपके और हमारे जैसे लोग थे। अब जो बड़े लोग रहते हैं दे आर यूजुअली नोन एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हो गए, म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गए, एंड इवन जो बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रहते हैं, जैसे आपने कुछ नाम सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला साहब हो गए, और वी हैव राकेश दम्मानी साहब, रमेश दम्मानी साहब। तो ये सब क्या करते हैं, दे क्रिएट अ कंपनी, ताकि वहाँ पे वो लोग बेटर टैक्स प्लानिंग कर सके, जाता उनको, बिकॉज दे ऑल्सो एम्प्लॉय लॉट ऑफ पीपल ना, कि उनके अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं विच डू रिसर्च फॉर देम, तो दे क्रिएट अ कंपनी एंड देन दे आर लेटर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एंड अगर वही राकेश झुनझुनवाला साहब अपने पर्सनल अकाउंट से कुछ परचेस करेंगे तो वो इंडिविजुअल हो जाएंगे, ठीक है। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, large organizations that invest sizable amounts of money in financial markets, such as, उनका एग्जाम्पल है such as pension fund, insurance companies and mutual funds. तो here sizable amount of इन्वेस्टमेंट में बात हो रही है, तो साइजेबल अमाउंट ये होगा कि 1-2 करोड़ नहीं होता है यहाँ पे। जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं तो दे आर टॉकिंग इन थाउजेंड्स ऑफ करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़, इस टाइप का अमाउंट दे इन्वेस्ट। एंड उनके की कैरेक्टरिस्टिक्स है एक्सेस टू वास्ट रिसोर्सेज एंड प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, लाइक जैसे मैंने बताया कि दे विल हायर लॉट ऑफ रिसर्च एनालिस्ट, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व रहता है, तो दे विल डू एवरीथिंग, लाइक दे विल हैव अ रिसर्च एनालिस्ट जो उनके लिए फंडामेंटल एनालिसिस करेगा, जो टेक्निकल एनालिसिस करेगा, जो फ्यूचर ट्रेंड्स देखेगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। वो कंपनी के प्रमोटर से बात करेंगे जाके कि आपकी कंपनी के क्या प्लान है, व्हाई शुड वी इन्वेस्ट इन योर कंपनी, एंड सो ऑन। देन दे सेकंड पॉइंट है, दे कैन इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइसेस ड्यू टू लार्ज ट्रेड वॉल्यूम्स, कि उनके पास इतना पैसा रहता है कि दे कैन चेंज द मार्केट ट्रेंड ऑन अ गो, लाइक if if for suppose we are taking example of SBI mutual fund. So if they are making a purchase in any of the stock, for suppose they pumped up Reliance by adding 2000 crores of money in it, so obviously it is going to make a headline in newspaper कि SBI mutual fund ने 2000 करोड़ रुपए का Reliance खरीदा, and that is going to change the market trend, and इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लाइक अस विल फॉलो देम कि ओके, इफ इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन आके रिलायंस खरीद रहा है, सो उसमें कुछ वैल्यू होगा, सो वी विल आल्सो गो एंड बाय, सो इट विल ब्रिंग एडिशनल लिक्विडिटी, मतलब और लोग आ जाएंगे खरीदने। एंड थर्ड पॉइंट इज मोर फोकस ऑन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे कि अगर उनके पास 10,000 करोड़ है तो 10,000 करोड़ का एक ही स्टॉक खरीद लेंगे, उसमें बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़े रिस्क पर रहेगा। So their focus is to diversify the amount in different sectors and maximize the return, कि अलग अलग सेक्टर में पैसे डालो, थोड़ा आईटी के स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा टूरिज्म में डाल दिया, थोड़ा रेलवे स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स में डाल दिया, एंड देयर फोकस इज टू मैक्सिमाइज द रिटर्न, कि उनको ज्यादा से ज्यादा पैसा बने और रिस्क भी कम रहे। सो एनी डाउट इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? No, sir. ओके, लेट्स गो अहेड देन। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। वी हैव डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। सो मतलब एज द नेम सजेस्ट कि जो डोमेस्टिक वाले हैं वो इंडिया के हैं, फॉरेन वाले हैं जो इंडिया के बाहर के रहते हैं। तो इंडिया के बाहर के ऐसा नहीं कि सिर्फ एशिया के आसपास के रह रहे हैं, दे कुड बी फ्रॉम एनी कंट्री, मेजरली दे कम फ्रॉम यूरोप, यूएसए, सिंगापुर। सो लेट्स सी क्या डिफरेंसेस है दोनों में। सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को हम डीआईआई भी बोलते हैं, एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को भी ऑल्सो कॉल एफआईआई, ओके।
So institutional investors of India are domestic and foreign institutional investors are FII. So जो domestic institutions है they will usually invest for long term, मतलब उनका जो investment रहेगा वो long term horizon के लिए रहेगा. They don't want to do trading in our market कि आज खरीदा कल बेचा. Like they are also emotionally attached with our economy and our stock market. तो वो ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेंगे कि आज हमने कोई बहुत सारा स्टॉक परचेस कर लिया है, हमारी न्यूज़ को देख के बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब छोटे छोटे इन्वेस्टर्स ने भी खरीद लिया है एंड हम कल उसको पूरा सेल कर देंगे. दे आर इन अवर मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म एंड दे डोंट डू सच चिंदीगिरी व्हाट वी कैन से कि छोटा छोटा खरीद के जल. दे डोंट try to make quick profits. Okay, whereas foreign institutions are not emotionally connected with our markets, they are here to do business. तो दे इन्वेस्ट फॉर शॉर्ट एंड मीडियम टर्म. वो किसी स्टॉक में या इंडिया के इंडेक्स में पैसा डालेंगे, उनको 3-4% का रिटर्न मिलेगा, दे विल सेल एंड गो अवे. उनको फिर अपॉर्चुनिटी दिखेगी तो वापस आएंगे, फिर पैसा डालेंगे, फिर चले जाएंगे. बिकॉज वो इंडिया इज नॉट ओनली कंट्री फॉर देम टू इन्वेस्ट. अगर उनको इंडिया में अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो इंडिया में पैसा कमा लेंगे. अगर उनको बांग्लादेश में लग रहा है कि पैसा लगाना है तो दे विल गो टू बांग्लादेश, दे विल गो टू भूटान, दे विल गो टू चाइना. दे कीप रोटेटिंग देयर मनी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री जहाँ की इकोनॉमी अच्छा फ्लोरिश कर रही है. सो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे कोई लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट करने की. दे कैन इन्वेस्ट कितना भी अमाउंट दे वांट. लाइक अगर रिलायंस के 1 लाख शेयर है मार्केट में तो दे कैन इवन परचेज ऑल द 1 लाख शेयर्स. Whereas for foreign institutions, we have a restriction of 25%. In any company, they cannot have a stake more than 25%. ऐसा रिस्ट्रिक्शन क्यों डाला है? क्योंकि जब भी किसी कंपनी का होल्डिंग शेयर 51% से ज्यादा किसी के पास हो जाता है तो उनकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है. तो अगर रिलायंस में कोई फॉरेन की कंपनी ने आके 51% स्टेक उठा लिया बाजार में से, तो उनके पास ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी एंड इंडिया से कंट्रोल चले जाएगा, वो एक फॉरेन कंपनी बन जाएगी. तो इंडिया में एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी फॉरेन कंपनी किसी भी कंपनी में मार्केट में से लाइक आप एक स्ट्रेटेजिक डील कर सकते हो. यू कैन रीच आउट टू मुकेश अंबानी कि मुझे आपका बिजनेस खरीदना है एंड यू कैन डू एग्रीमेंट और आप म्यूचुअली सेल कर सकते हो. बट आप ऐसे मार्केट से नहीं उठा सकते कि चलो आज मैंने मेरे डीमैट अकाउंट में 50,000 करोड़ रुपए डाले और पूरी टाटा मोटर्स को खरीद लिया. ऐसा नहीं कर सकते. तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के एग्जांपल है पेंशन फंड्स, म्यूचुअल फंड्स, एलआईसी एंड बैंक्स. देन फॉरेन इंस्टीट्यूशन के कुछ एग्जांपल है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, यूरो पैसिफिक ग्रोथ फंड, ब्लैक रॉक, ब्रेकशेयर हाथवे. तो ब्रेकशेयर हाथवे अपने वॉरेन वॉरेन बफेट का नाम सुना होगा, उनकी कंपनी का नाम है. And then we have some mutual funds of foreign like Euro Pacific Growth Fund, BlackRock. And then we have government of Singapore जो कि इंडिया में heavily invest कर रखी है. एंड इंडिया के जो एग्जांपल है पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड्स एंड एलआईसी. जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह रहते हैं जहाँ पे हम एसआईपी करते हैं वो लोग हैं. एलआईसी की जो हम पॉलिसी लेते हैं हमारे घर वाले. सो व्हाट will LIC do of those much premiums? Like we have taken life insurance. इंडिया के हर घर से उनको 20-30 हजार की एलआईसी मिल रही है. तो इतने पैसे का क्या करेंगे वो? तो दे इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. सो इज विद द पेंशन फंड्स कि अगर हम उनको अभी पैसे दे रहे हैं तो टेक बैक. पेंशन फंड्स वो फंड्स होते हैं जिनको हम पैसे देते हैं एंड वी गेट दैट मनी बैक ड्यूरिंग अवर रिटायरमेंट. सो आज मैं 28 ईयर्स का हूँ, मैंने उनको 1 लाख रुपए दे दिए जो मुझे 60 ईयर्स की एज पे वापस मिलेंगे 30 साल बाद. सो 30 साल तक वो लोग उस पैसे का क्या करेंगे? सो दे विल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट. सो लाइक इट विल बी अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फॉर देम. उनको उससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा एंड 32 ईयर्स बाद जब मैं उनसे विड्रॉ करूंगा तो दैट विल बी अ वेरी मिनिमल अमाउंट फॉर देम. So these are the differences between domestic and foreign institutions. Do we have any doubts? So don't मतलब हेजिटेट मत करना सोच के अगर कुछ भी डाउट है कि अरे सिली क्वेश्चन लग रहा है. अभी कंसेप्ट क्लियर करते जाओ क्योंकि आगे टॉपिक्स कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे. सो अगर कुछ क्लैरिटी नहीं रहेगी तो बाद में दिक्कत आएगी. एंड अगर कोई डाउट नहीं तो थम्स अप डाल दो. विल मूव फॉरवर्ड. रोहिता. Okay. Then we have the next participant which is a regulator. So आपको क्या लगता है what is a regulator? Try to answer like what is the regulator according to you guys कि regulator का क्या काम है?
Okay, I'll start then. Um, so yeah, regulators are several bodies which are set up by the regulatory framework of Indian financial system. They all are there to ensure parity and responsibility among participants in that particular subsector. Every regulator is instrumental in making sure every regulator is instrumental in making sure that the interests of the investors and all other parties are not compromised, and there is a fairness in the financial system of India. So एक regulator कौन होता है जिसका काम रहता है रेगुलेशन लाना. आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो उसका आप बोल सकते हो कि वो एक चौकीदार है जिसका काम है चेक करना कि सब चीजें सही चल रही है कि नहीं एंड कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है. एंड हर एंड वी हैव टू मैनी बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं जो कि हर इंडस्ट्री के लिए वी हैव स्टैब्लिश्ड अ रेगुलेटर जिसका काम रहता है उस इंडस्ट्री को ओवरलुक करना. स्टॉक मार्केट के लिए वी हैव सेबी, इंश्योरेंस के लिए वी हैव IRDAI, म्यूचुअल फंड के लिए वी हैव AMFI. तो ऐसे बहुत सारे रेगुलेटर्स है, अराउंड अराउंड 7 से 8, जिसका काम है सिर्फ उस सेक्टर को चेक करना. एंड उसके लिए दे हैव मेड लॉट ऑफ लॉ कि यू नीड टू फॉलो दिस रूल्स एंड अदर थिंग्स. एंड ताकि लाइक इन इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी अभी बहुत कम है. जैसे अभी भी आप यंग एज पे सीख रहे हो बट आपके स्कूल में कुछ भी फाइनेंशियल लिटरेसी के टॉपिक्स नहीं होंगे इतने ज्यादा. तो टू प्रोटेक्ट द स्मॉल इन्वेस्टर्स वी हैव रेगुलेटर्स. तो इनके फंक्शन क्या रहते हैं? टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स अगेंस्ट फ्रॉड एंड स्कैम्स. आपको पता ही इंडिया में कितना इजी है फ्रॉड और स्कैम करना. आए दिन कुछ ना कुछ OTP वाले फ्रॉड होते रहते हैं, लाइक बैंक से पैसा गायब हो जाता है. वी हैव पीपल सेलिंग फेक स्कीम्स. आपको व्हाट्सएप पे आएगा कि आपको कौन बनेगा करोड़पति से इतना अमाउंट मिलने वाला है, बट पहले आप हमको पैसे ट्रांसफर करो. तो उस इन सब के लिए वी हैव रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो रेगुलेट करती है ये सब चीजें, एंड यू कैन गो एंड कंप्लेन टू देम. देन वी हैव टू सेकंड फंक्शन इज टू रेगुलेट द एवर ग्रोइंग स्टॉक मार्केट. क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज है जो ऊपर जाते जा रही है एंड वी नीड लॉट ऑफ रेगुलेशन ओवर इट. उसमें बहुत मैनिपुलेशन हो सकता है कि 4-5 बड़े प्लेयर मिल गए, एक स्टॉक में पैसा डाल डाल के उसको ऊपर लेके जा रहे हैं. दे आर पंपिंग इट अप. इसको पंप एंड डंप बोलते हैं. तो भी रेगुलेटर का काम रहता है वो रेगुलेट करना कि ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक लॉस में चल रहा है एंड उसकी स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हो गई है. एंड द थर्ड पॉइंट इज टू ब्रिंग द डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द मार्केट. कि कुछ भी फैक्ट्स हिडन ना हो. लाइक दे हैव स्ट्रिक्ट लॉज कि हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश करने हैं हर क्वार्टर में. सो ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. ऐसा नहीं हो कि 5-6 महीने हो गए कंपनी अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ही नहीं बता रही है, इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या वो कुछ आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कहीं उन्होंने बिजनेस ही तो नहीं बंद कर दिया है. तो ऐसे डिसिप्लिन एंड ट्रांसपेरेंसी बनी रहे. तो वी हैव दिस इज वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रेगुलेटर. सो you like I mentioned कि बहुत सारे रेगुलेटर्स हैं. सो आई हैव मेंशनड हियर 6 रेगुलेटर्स व्हिच यू आर गोइंग टू हियर इन अ डे टू डे टर्म या थोड़े कॉमन जो हैं. सो फर्स्ट इज सेबी, सेकंड वी हैव IRDAI, थर्ड इज RBI, फोर्थ इज PRFDA, वी हैव MCA एंड AMFI. तो इनके बारे में और बताता हूँ मैं आपको. सो या सो सेबी सेबी जो है ना वो स्टॉक मार्केट का रेगुलेशन करती है पूरा. सो सेबी द मार्केट रेगुलेटर इन द इंडियन कैपिटल मार्केट इज द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. जो भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीजें रहती हैं उसको सेबी रेगुलेट करती है पूरा. देन वी हैव IRDAI. ये इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा रेगुलेट करती है कि सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज इन लाइन है ना, कुछ अनरीजनेबल रिटर्न्स तो प्रॉमिस नहीं करे जा रहे हैं उसमें. एंड जो जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी ली उसको उसके क्लेम्स टाइम पे मिल रहे हैं कि नहीं. तो उसका फुल फॉर्म है द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी. एंड वो इंश्योरेंस सेक्टर को पूरा रेगुलेट करती है. देन वी हैव RBI विच इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी को पूरा मैनेज करती है, जो अपना करेंसी पूरा मैनेज करती है एंड सारे फिजिकल डिसीजंस लेती है कि कंपनी क्या कर रही है एंड क्या नहीं कर रही है. देन वी हैव सॉरी कंपनी नहीं, बैंक्स क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है एंड उनके उस पर पूरा ध्यान रखती है. देख कीप अ चेक कि बैंक्स के पास सफिशिएंट डिपॉजिट्स है कि नहीं एंड वो ज्यादा लोन तो नहीं डिसबर्स कर रहे हैं. ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा लोन दे दिए एंड पैसा वापस नहीं आ रहा तो बैंक ही कहीं बैंकरप्ट ना हो जाए, कि बैंक के पास सारे पैसे खत्म ना हो जाए. देन वी हैव PFRDA विच इज पेंशन फंड्स रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी.
जो कि पेंशन्स को रेगुलेट करती है कि पेंशन्स में जो अमाउंट आ रहा है वो ऐसा ना हो कि सारा इक्विटी में इन्वेस्टेड है तो कभी मार्केट क्रैश हो गया एंड बहुत सारे लोग अगर पेंशन को रिडीम कर रहे हैं तो दे शुड हैव इनफ फंड एंड दे चेक ऑल अदर थिंग्स. देन वी हैव एमसीए विच इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट करती है. वो चेक करती है कि सारी कंपनीज सही से फंक्शन कर रही है कि नहीं है, उन्होंने अपने सीए एंड सीएस सही से अपॉइंट करके रखे हैं कि नहीं, दे आर फाइलिंग देयर पेपर्स प्रॉपरली. अगर उन्होंने कोई डायरेक्टर चेंज करा है, कुछ प्रमोटर चेंज करा है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ है तो पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाए. देन वी हैव एएमएफआई जो कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड है, जो म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है. एएमएफआई अप्रूवल देता है किसी भी म्यूचुअल फंड को. लाइक if we have SBI mutual fund, it is a company, then they will create a lot of mutual fund. Like we will have SBI Nifty 50 index fund, we have SBI small cap fund, we have large cap fund. तो जब भी कोई म्यूचुअल फंड हाउस को नया म्यूचुअल फंड लॉन्च करना है तो दे विल अप्रोच एएमएफआई फर्स्ट, एंड एएमएफआई उनको बताएगा कि व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया. आपका रिस्क बहुत ज्यादा है, इसमें थोड़ा रिस्क एक्सपोजर कम करो, लाइक दिस कैटेगरी इज नॉट गुड. एंड like as a teacher they will tell you okay, this looks good then you can go forward, and if not then the, the fund houses will make some changes. So do we have any doubt in types of regulators? Not sure. Okay, 1 second, I'm receiving a phone call. Sorry. So let's move on to the next slide then. Then we have role and impact of each participant. So अभी तक हमने चार टाइप के पार्टिसिपेंट्स के बारे में पढ़ा. वन इज रिटेल इन्वेस्टर, देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, देन वी हैव ट्रेडर्स, देन वी हैव रेगुलेटर्स. ओके, तो इन चारों का रोल पढ़ लेते हैं. तो रिटेल इन्वेस्टर जो रहते हैं दे प्रोवाइड मार्केट लिक्विडिटी एंड पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान्स. तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा वो बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है. सो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इतने सारे हैं इंडिया में. लाइक वी हैव मोर देन 20 करोड़ डीमैट अकाउंट, एंड 20 करोड़ लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख, 10-10 लाख इन्वेस्ट करते हैं. तो इट मेक्स अप अ ह्यूज अमाउंट एंड दे प्रोवाइड लिक्विडिटी टू मार्केट की. इतने सारे लोगों ने थोड़ा थोड़ा परचेज करा है तो उसके कारण बहुत सारा पैसा आ गया है. एंड दे प्राइमरीली पार्टिसिपेट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान. वो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन उनका बड़ा रहता है. वो हर 2-4 महीने में बेचने का नहीं सोचते हैं. दे होल्ड फॉर 1 ईयर 2 ईयर मोस्टली. Then we have institutional investors which influence market trends due to large transaction volumes. So इनका जो ट्रेडिंग साइज रहता है इट इज वेरी ह्यूज, जो मार्केट ट्रेंड को चेंज कर सकते हैं इजीली. लाइक इफ दे आर प्लानिंग टू सेल they can push the market into downtrend, and if they are buying they can push the market to uptrend. Then we have traders. They add additional liquidity and volatility to markets, but may also cause rapid price fluctuations. तो जो ट्रेडर्स रहते हैं ये कैमरा बंद हो गया. 1 सेकंड. गाइस थोड़ा कैमरा का इशू आ रहा है, उसके बिना ही कंटिन्यू करता हूँ अभी. इट इज नॉट स्टार्टिंग. तो कहाँ पर थे हम? ट्रेडर्स पे. तो जो ट्रेडर्स रहते हैं ना वो एडिशनल लिक्विडिटी लाते हैं मार्केट में. लाइक अपार्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग वो थोड़ा और फंड्स डालते हैं मार्केट में टू ट्रेड. इट कुड बी लाइक एनी अमाउंट फ्रॉम 1 लाख टू 10 करोड़, एंड दे ट्रेड फ्रॉम इट. लाइक जो हमने पहले टॉपिक पढ़ा था डेरिवेटिव्स. तो यूजुअली ट्रेडर्स आर मोर active in derivative sector, and they try to make quick profit from market, and they may also cause rapid market fluctuations. कि अगर ट्रेडर्स की भी एक एसोसिएशन है एंड दे हैव डिसाइडेड टू
invest in a stock or trade a particular position in future and option, so it will um, ignite additional volatility. Then we have regulators जो enable करते हैं smooth market functioning by regulating the rules, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही, कुछ fraud तो नहीं हो रहा है. So this is the role of participants. देन वी हैव अदर पार्टिसिपेंट्स जो कि अभी हमने अभी डिस्कस नहीं करें क्योंकि उनको हम आने वाले क्लासेस में और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. तो वी हैव ब्रोकर. सो ब्रोकर कौन है? एक मिडिल मैन होता है ब्रोकर. सो स्टॉक ब्रोकर इज अ मिडिल मैन हु हैज द अथॉरिटी टू बाय एंड सेल स्टॉक्स एंड सिक्योरिटीज इन अ स्टॉक एक्सचेंज ऑन इन्वेस्टर बिहाफ. स्टॉक्स आर ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंजेस. कुछ ब्रोकर के एग्जांपल्स हैं जेरोदा, मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन एंड ग्रो. सो एक ब्रोकर एक मिडिल मैन रहता है जो आपके बिहाफ पे बाय एंड सेल करेगा स्टॉक्स को. अगर आपको रिलायंस परचेस करना है तो आप ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में ढूंढते रहोगे कि यार रिलायंस का कौन कौन स्टॉक बेच रहा है. तो यू विल गो टू अ ब्रोकर जो आपके लिए एक सेलर ढूंढ के लाएगा और आपको स्टॉक की डिलीवरी ला के देगा. अब अभी ये लिखा हुआ है स्टॉक्स आर ट्रेडेड थ्रू एक्सचेंजेस. तो एक्सचेंज क्या होता है? तो अभी किसी सिक्योरिटी को ट्रेड करने के लिए उसको कहीं लिस्ट होना पड़ता है. तो जहां पर वो लिस्ट होता है ना उसको एक्सचेंज बोलते हैं. तो एक्सचेंज दो है इंडिया में, मतलब है तो 8-10, बट जो फेमस एक्सचेंजेस है वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE एंड देन वी हैव बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE. तो यहाँ सो एक बाय एंड सेल का ऑर्डर ऐसे एग्जीक्यूट होगा कि रिलायंस जो कंपनी है इट विल गो टू नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बोलेगी कि मुझे मेरा शेयर उस पर लिस्ट करना है एंड वो वहाँ पर लिस्ट हो जाएंगे. देन इन्वेस्टर्स विल कम जिनको बाय करना रहेगा स्टॉक. सो फॉर सपोज मुझे रिलायंस बाय करना है तो आई विल अप्रोच अ ब्रोकर फॉर सपोज जेरोदा. मैंने जेरोदा के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भैया मुझे रिलायंस का एक शेयर दे दो. तो वो बोलेंगे ठीक है. तो वो जाके एक्सचेंज को बताएंगे कि मैं रिलायंस का एक शेयर मैं जयेश को दे रहा हूँ एंड मैं तनिषा से लेके दे रहा हूँ. तो एक्सचेंज विल नोट दैट ट्रांजेक्शन कि ओके जेरोदा ने, ब्रोकर ने एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट कर दिया है, रिलायंस से एक शेयर, रिलायंस का एक शेयर तनिषा से ने सेल करा है और वो जयेश के पास चले गया है. ठीक है. हाँ, सो कंसेप्ट ऑफ ब्रोकर इज क्लियर कि वो मिडिल मैन होता है एंड एग्जीक्यूट हेल्प्स इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांजेक्शन. ओके. देन वी हैव डिपॉजिटरी. तो डिपॉजिटरी क्या होती है? डिपॉजिटरी इज एन एंटिटी दैट होल्ड सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. It removes the burden of storing them physically. The main function of a depository is to cause an investor to trade securities. तो आपने जैसे देखा होगा कि आपके घर पे एक लॉकर रहता है, करेक्ट? जहां पर आप सारी वैल्यूएबल चीजें रख दोगे, या आपका बैंक में एक लॉकर होगा जहां पे आप अपना ज्वेलरी और एक्स्ट्रा कैश वगैरह रख दोगे. ठीक है. तो सिमिलरली डिपॉजिटरी वो होती है कि जहां पर आपका स्टॉक जो है, जो आपने शेयर खरीदा है, वहां पर सेफली रखा रहेगा. अगर आप उसको डीमैट अकाउंट, देखो जेरोदा जैसे डीमैट अकाउंट है जो ब्रोकर है, वहां पर आप शेयर खरीद लोगे तो आपको टेंशन होती रहेगी कि कहीं जेरोदा वाला भाग गया तो मेरा स्टॉक कहाँ जाएगा, करेक्ट? तो एक डिपॉजिटरी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई है जो CDSL और NSDL, दो डिपॉजिटरीज है इंडिया में. तो वो वहां पर क्या होता है, जैसे आपने स्टॉक खरीदा, आपने स्टॉक एक्सचेंज को पता चल गया, ब्रोकर ने बता दिया कि इन्होंने एक स्टॉक ले लिया है, तो जो एक्सचेंज रहेगा ना, स्टॉक एक्सचेंज, वो डिपॉजिटरी को बता देगा कि जयेश जी जो है, इनका पैन नंबर ये है, परमानेंट अकाउंट नंबर, और इनका डीमैट अकाउंट नंबर ये है, और इनके पास एक रिलायंस का शेयर आ गया है. अब तुम्हारी जवाबदारी है उसको संभाल कर रखने की. ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कल को ये ब्रोकर बंद हो गया तो इसका शेयर कहाँ जाएगा. तो आपका अगर आप ब्रोकर भी स्विच कर लोगे या बंद हो जाएगा तो यू विल ऑलवेज हैव दैट सिक्योरिटी सेफली डिपॉजिटेड इन द डिपॉजिटरी. एंड आप उनके वेबसाइट पर चेक कर सकते हो अपने पैन नंबर से कि भैया ये जयेश का पैन नंबर है, एंड यू कैन चेक द होल्डिंग देयर. ठीक है. इज डिपॉजिटरी क्लियर? अब मैं तब तक कैमरा चालू करने की कोशिश करता हूँ. ओके. एंड इन सारे टॉपिक्स के बारे में विल स्टडी मोर इन नेक्स्ट क्लास. ब्रोकर एंड डिपॉजिटरी, जहाँ पे हम स्टॉक्स को बाय सेल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. तो सो दिस वर द टॉपिक्स. नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस. आपको अभी तक किसी भी चीज में डाउट था तो आप पूछ लो. देन वी हैव 2-3 क्वेश्चंस, देन मैं आपको इंटर्नशिप टास्क बता दूंगा.
Okay, let's start. So, पहला question है, which of the following is considered a retail investor? Uh, Rohita, would you like to answer? Yes, sir. One second. A. Option A. नो नो, म्यूचुअल फंड कंपनी तो एक इंस्टीट्यूशन में आएगी। रिटेल इन्वेस्टर कौन है? जो हमारे जैसा इंडिविजुअल है। तो ऑप्शन बी रहेगा, एन इंडिविजुअल बाइंग स्टॉक्स फॉर पर्सनल इन्वेस्टमेंट। हमने क्या डिस्कस करा था कि आपके और मेरे जैसा जो कोई स्मॉल स्केल का इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उसको हम रिटेल इन्वेस्टर बोलेंगे। तो वो रहेगा। एंड म्यूचुअल फंड कंपनी एक इंस्टीट्यूशन रहेगा जहाँ पर बहुत सारा फंड आता है एंड दे इन्वेस्ट इन stock market or commodity market wherever they like. So, is it clear? Yes, sir. Okay. Then we have second question. Institutional investors typically A, invest in smaller amounts in the market. B, have a short-term focus on investment return. C, invest large sums of money and have access to professional expertise. Then we have D, buy and sell securities for a personal use. Would you C. Yes, correct. So institutional investors जो होते हैं, they invest large sum of money and have access to professional expertise. Like I mentioned कि उनके पास they will have amount in thousand of crores and they have a lot of analysts to work with. And yeah, you are right. So traders primarily aims to invest for long-term returns, profits from short-term price movement, provide investment advice to retail investors, stabilize market prices by holding investment. B. या बी, प्रॉफिट फ्रॉम शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट। वो छोटे छोटे मार्केट के मूव कैप्चर करने की कोशिश करते हैं शॉर्ट टर्म में टू मेक प्रॉफिट्स, करेक्ट। देन वी हैव या दिस वर द Q&A। अभी आई विल बी टेलिंग व्हाट इज द इंटर्नशिप टास्क फॉर द वीक 1। सो व्हाट यू हैव टू डू इज इंटरव्यू अ फैमिली मेंबर और रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड वगैरह who has invested in the stock market and prepare a brief report on it. Okay, अब उनको इंटरव्यू करना एंड उनसे पूछना कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पता है क्या। एंड आस्क देम कि व्हाट दे हैव इन्वेस्टेड इन, लाइक आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा है, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करा है या किसी और चीज में इन्वेस्ट करा है। ओके, देन आपको सेकंड चीज पूछनी है कि उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस कैसा रहा है। आपको पूछना है उनके ब्रोकर कौन है, क्या उनको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। अगर लॉस हो रहा है तो उन्होंने क्या लेसन लर्न करा है, एंड इवन प्रॉफिट हुआ है तो व्हाट दे हैव लर्न, कि उन्होंने क्या मिस्टेक करी है पास्ट में जो वो चाहेंगे कि इम्प्रूव हो जाए एंड नए इन्वेस्टर्स ना करें। जैसे आप भी थोड़े टाइम में इन्वेस्टिंग चालू कर दोगे तो दिस विल बी द सेकंड पॉइंट विच यू हैव टू आस्क देम। एंड थर्ड इज एनी एडवाइस दे वुड गिव टू द न्यू इन्वेस्टर्स, कि वो आपको क्या सिखाना चाहेंगे कि जो मिस्टेक्स उन्होंने करी है वो आप ना करो। सो इज द टास्क क्लियर? Yes, sir. ओके, सो आपके घर में करते हैं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह? मेरे मामा करते हैं। मामा जी करते हैं, हाँ। तो लाइक यू कैन ट्राई एंड आस्क देम, या आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव और जो भी हैं यू कैन आस्क देम एंड विल मतलब जब मैं वीक 2 का टास्क दूंगा तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइक यू विल हैव अ वीक टू गैदर इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट क्लास में बताना है करके। ओके, Sir, where to submit the task? currently अब I'll ask the I'll ask Vishaka if the portal is open. Otherwise you can write it in a word file or PowerPoint, like या आप physically पेपर में भी लिख सकते हो for timing. And if they have opened a portal, will share the link with you. Okay, in the WhatsApp group. Yeah, you are added in the WhatsApp group. Yes, sir. Okay, okay. So Tanisha just joined again. So Tanisha, I just discussed what is the internship task for the week 1. So what you have to do is interview a family member or a relative who has invested in the stock market and prepare a brief report.
आपको अपने किसी भी फैमिली मेंबर या रिलेटिव से बात करनी है, आपके फ्रेंड से बात करनी है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड यू हैव टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट ऑन इट, एंड यू हैव टू कीप दिस 3 पॉइंट्स इन कंसिडरेशन। अगर वो कुछ एडिशनल भी बताते हैं, आपको कुछ एडिशनल भी पूछना है, तो यू कैन आस्क देम। तो फर्स्ट पॉइंट इज व्हाट दे इन्वेस्ट इन, लाइक स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स में लगाते हैं, क्रिप्टो करेंसी में लगाते हैं, कमोडिटी में लगाते हैं। सो व्हाट आर दे इन्वेस्टिंग इन? देन सेकंड पॉइंट इज व्हाट इज देयर इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस, लाइक उनका ब्रोकर कौन है, आर दे मेकिंग प्रॉफिट लॉसेस, एंड व्हाट आर द लेसन्स दे हैव लर्न from their past experiences. And the third point is any advice would they would like to give to the new investors. So these are the 3 points. So do you have any doubts, Tanisha? Sir, actually, the thing is, as you know, that I'm in a boarding hostel, so it's a bit difficult to do this task for me. Okay, okay. If like you can try and connect with mobile phone with them if possible. ऐसा नहीं है So, कि, हाँ, sir, sorry. actually, we don't get the mobile phones over here. Oh, okay, okay. So like आपने मीटिंग कैसे ज्वाइन करी फिर? यहाँ पे लैपटॉप वगैरह चाहिए Yes, क्या? sir. Actually, we get laptop for this session, and then we have to submit our laptop back to our house mother. Oh, okay, okay, got it. So no problem then. I'll try to arrange some alternate tasks which you can then आप वहाँ पे अपने बोर्डिंग स्कूल में पूछ के देखो, like if other students are aware about the financial markets and what do they know about it. Okay. Okay, sir. Okay, like ask them ki if, are they aware of the term financial market and stock market, and what do they say? You can record those their responses. Okay. So ये responses submit करने के लिए most likely we will be having a portal. So I'll check with Vishaka once and we'll share the link of portal in WhatsApp group. Meanwhile अगर आपका task वो link आने के पहले हो जाता है, तो you can note it down in just a notebook or MS Word or PowerPoint or something and share it with us. Okay. So Okay, sir. this was for the class 3 and we'll have class 4 on every alternate day ना, आज क्या है? और we'll have it on Wednesday and we will discuss in that class कि हम stocks कैसे purchase करते हैं, कैसे sell करते हैं, and what are the type of stocks. Okay. And you can follow us on our socials on Instagram, YouTube, and Twitter. Like I mentioned, I create a lot of fun content regarding finance, so yeah, it will also help you in learning. Do we have any doubts in today's class? You can ask, otherwise you can end the class. All good, Tanisha? Sir, I have a doubt. हाँ बताओ. Sir, for the broker, it's written that stocks are traded through exchange. Can you Correct. please explain that point once again? Yeah, 1 second. किधर था? So we have primarily 4 parties involved जब कोई stock buy या sell होता है ना, तो one is a buyer, second is a seller, third is a broker, fourth is a exchange and fifth is depository. ठीक है, तो आपने depository क्या होता है वो सुन लिया था? Yes, sir. ओके, देन एक एक्सचेंज क्या होता है? लाइक एक्सचेंज के नाम पे मत जाकर कंफ्यूज हो. तो एक्सचेंज इज अ मार्केट प्लेस, आप समझ सकते हो, जहां पर सारे स्टॉक्स आके लिस्ट होते हैं कि लाइक देयर आर सो मेनी कंपनीज, तो उनको स्टॉक मार्केट में आना है तो दे विल हैव टू गो टू द एक्सचेंज एंड वहां पे जाके वो लोग लिस्ट होंगे. तो इन इंडिया वी हैव 2 एक्सचेंजेस, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज. ओके. एंड जब भी कोई नई कंपनी आती है, लाइक वी डिस्कस प्राइमरी मार्केट में कि एनी कंपनी विच इज ब्रिंगिंग द इशू फॉर द फर्स्ट टाइम, वो वहां पर जाके लिस्ट होती है. 1 सेकंड. सो आप उसको एक सिंपल सा मार्केट प्लेस समझो जहाँ पे शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं. ठीक है. एंड ब्रोकर का क्या काम होता है कि यू कैन, अब एक्सचेंज तो एक ही है, स्टॉक एक्सचेंज, तो आप डायरेक्टली उनको तो कांटेक्ट कर नहीं सकते हो, वो लोग कितने सारे लोगों को मैनेज करेंगे ना. सो दे वी हैव ब्रोकर्स इन मिडिल जो कि हमारे बिहाफ पे वो काम करेंगे, जिनके पास एक्सचेंज से डायरेक्ट टाई अप रहता है. दे हैव डायरेक्ट लीज लाइन विद एक्सचेंज, जहाँ पर वो क्विकली ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करके उनको इन्फॉर्म कर देंगे. अदरवाइज अगर हम खुद जाके एक्सचेंज को बताने जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. ओके. इज इट क्लियर और शुड आई No, sir. It's clear. clear? Okay, okay. Yes.
Thank you so much, sir. Yeah, and like broker, depository and exchange के बारे में क्लास 4 and 5 में will study in detail, so don't worry. अगर अभी थोड़ा सा आपको डाउट भी है तो you will get to know more about it. Okay, sir. Yeah. Okay. Good night, sir. No, sorry. Good night. Good night. Good night. Yeah. Have a great week ahead. Bye bye. Bye.